Today we are going to start new subject, new chapter. Subject is history and political science. Lesson number 1. Historiography development in the West. Okay. The outline points in these topics are, look at the board, which are outline points. Introduction, objectives of writing history, then research method, disciplines contributing, then tradition of a historiography, historical archaeology, archival science, manuscriptology, then epigraphy, linguistics, lettering style, analyzing sponge, mathematics, and genealogy. Then tradition of a historiography, modern historiography, and then development of a science respective in Europe and historiography, and then notable scholars in Europe. These are major outline points of this topic. We can understand one by one. Let's start. Before starting historiography lesson, first of all we know about something about this introduction regarding with this. The empirical method, the method of observation and experiments in laboratory, that is the empirical method, is used to study the natural and physical science. This method cannot be used to study the history, as we were not present in a historical time to observe and experiment, neither can we recreate the historical event. मतलब empirical जो method है, that means method of observation, experiment in laboratory में जो experiments करते हैं उसके लिए empirical method है, वो natural and physical science का study करने के लिए हम use करते हैं. But this method cannot be used to study the history के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, because we are not present in historical time. हम जो गत काल हो गया, जो पास्ट हो गया, उस काल में हम उपस्थित नहीं थे, और ऑब्जर्वेशन नाइदर वी कैन रिक्रिएट द हिस्टोरिकल इवेंट, ना ही वो हम हिस्टोरिकल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए एम्पिरिकल मेथड ये यूजफुल नहीं है. राइट. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री: to put the past events in chronological order and analyze, verifying authenticity of the collected documents and asserting the truth. Okay, for that need of an experts. We can prove the authenticity of a historical sources with the help of experts in the following fields. हमको experts की जरूरत होती है. किसके लिए? An experts who knows the language of a script of a historical documents to read and understand its meaning. हमको ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो भाषा को जान सके, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनको पढ़ सके और उसका अर्थ समझ सके. इसके लिए हमको एक्सपर्ट की जरूरत होती है. One who can identify, examine authenticity, the age in which the writing and lettering style was prevalent. एक जो ऐसा आइडेंटिफाई करे, एग्जामिन करे, ये सही है या नहीं. the age in which writing and lettering style was prevalent, जो लिखा हुआ है या लेटरिंग का अक्षर का जो स्टाइल है वो जो प्रिविलेंट है या नहीं, वो जान सके. उसके लिए हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है. वन हु कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ पेपर यूज्ड, कौन सा पेपर यूज किया है, वो जानने वाला एक्सपर्ट चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड द एज इन विच इट वाज यूज्ड, और कौन से साल में इसको इस्तेमाल किया गया है, ये जानने वाला भी एक्सपर्ट हमको चाहिए. मतलब एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. हैविंग नॉलेज ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स की भी नॉलेज होने वाला एक्सपर्ट की जरूरत होती है. एक्सपर्ट्स हु कैन वेरीफाई वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंस, जो ऐतिहासिक रेफरेंसेस है उसको वेरीफाई करने वाला भी एक्सपर्ट्स उसकी जरूरत होती है.
Now the question is asked regarding the exam, that is why need of experts for historical documents. हिस्ट्री हिस्टोग्राफी में एक्सपर्ट्स की जरूरत क्या है. Another question is that is a short question. Write the objective of writing history. ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत क्या हो, उद्देश्य क्या होता है. इतिहास जो लिख के रखा गया उसकी जरूरत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है. मतलब इसके लिए ये दो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के जरिए हम जान सकते हैं. देन हिस्टोलॉजिकल रिसर्च मेथड एंड स्टेजेस ऑफ हिस्टोग्राफी. मतलब उसके हिस्टोलॉजिकल रिसर्च जो होता है, हर एक चीज़ का एक रिसर्च होता है, उसके जरिए हम जान सकते हैं और कुछ आने वाले भी युवा जनरेशन को हम जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं. रिलेवेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड इट्स कंपैरेटिव एनालिसिस. मतलब जो हिस्टोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, मेथड्स एंड स्टेजेस ऑफ हिस्टोग्राफी, उसकी जो मेथड्स है कौन से तरीके से वो स्टडी करते हैं हिस्टोग्राफी की, और कौन से स्टेजेस मतलब कौन सी पॉइंट उसमें आते हैं. इस बात का उसके बाद की कौन सी स्टेज, उसके बाद की कौन सी स्टेज, उसके बारे में बता सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसेस ऑफ अ टाइम एंड स्पेस and also various conceptual framework. मतलब अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस को अंडरस्टैंड करके, ज्ञान करके, टाइम को, स्पेस को और also various conceptual framework में उस जो चीज़ को हम रिसर्च कर रहे हैं उसको फ्रेमवर्क में डालते हैं. देन क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेस. उस टाइम में जो सोर्सेस अवेलेबल थे उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा ली जाती है. एंड देन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. उसके बाद में जो रिसर्च किया उसको हम डिक्लेयर करते हैं. नो विच डिसिप्लिन्स, मतलब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है रिगार्डिंग विथ द एग्जाम. हिस्टोलॉजिकल मेथड्स एंड स्टेजेस ऑफ अ हिस्टोग्राफी. Now we can tell the stages and methods, that is the relevant historical information and its competitive analysis. That is the first stage. Understanding references of a time and space and also various conceptual framework. Then critical examination of a various historical sources. And last, to formulate hypothesis. Next point is that डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग इन द हिस्टोलॉजिकल रिसर्च. कौन से डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट करते हैं हिस्टोलॉजिकल रिसर्च में. फर्स्ट आर्कियोलॉजी, दैट मीन्स पुरातत्व शास्त्र जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी. देन आर्चिवल साइंस, अभिलेखीय, दैट इज आर्चिवल साइंस. देन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, हस्तलिखित शास्त्र, जो हाथों से लिखा हुआ जो शास्त्र, दैट इज अ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. देन एपिग्राफी, दैट इज अ स्टडी ऑफ अ इंस्क्रिप्शन. वर्ण लेखन, किसी चीज को वर्ण लेखन करते हैं, दैट इज अ एपिग्राफी. देन लिंग्विस्टिक्स, दैट मीन्स भाषा शास्त्र, भाषा का शास्त्र, दैट इज अ लिंग्विस्टिक्स. लेटरिंग स्टाइल एनालाइजिंग ब्रांच, अक्षर और रेखांकन शास्त्र, जो लेटरिंग स्टाइल एनालाइजिंग ब्रांच होता है, दैट इज अक्षर रेखांकन. न्यूमिस्मेटिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स. जो कॉइन्स रहते हैं, एक मतलब 1 रुपए का, 2 रुपए का, पहले के जमाने में अलग अलग कॉइन्स रहते हैं, तो उसको हम नाणा शास्त्र क्या, नाणी शास्त्र हम बोल सकते हैं. जो कॉइन का शास्त्र है, नाणी शास्त्र, दैट इज न्यूमिस्टिक्स. Then genealogy, that is study of a lineage, that is वंश जो रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी उनकी वंशावली जो रहती है, that is a genealogy, study of a lineage. Next point regarding with this, tradition of historiography, histological writing and historian. Historical sources are critically examined and the past events are preserved in the writing. The writing of a critical historical narrative is known as a historiography. तो historiography किसको बोलते हैं?
Historical sources are critically examined and then passed, are preserved in writing. A writing of a critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such narrative is an historian. मतलब क्रिटिकल हिस्ट्री को, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, उसी को हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं. और जो लिखता है, तो स्कॉलर हु राइट्स द सच नैरेटिव इज एन हिस्टोरियन, दैट इज इतिहास लेखनकार. और हिस्टोग्राफी दैट मीन्स इतिहास लेखन, दैट इज एन हिस्टोग्राफी. ओके, देन हिस्टोलॉजिकल राइटिंग्स. Historian is not a position to include all events in his narrative. जो इतिहास लेखन करता है is not a position to include all events in his narrative. जो सब position include all events in his narrative. So he decides the events which he thinks should reach the people. तो वो डिसाइड करता है कि कौन से इवेंट्स लोगों तक पहुंचे. वो हिस्टोरियन, जो इतिहास लेखन करता है, हिस्टोरियन, वो लिखता है. His perspectives on those events depends upon conceptual framework he adopts. उसने कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या लिखा. मतलब उसने लोगों को जो बताना चाहिए, लोगों को जो जानकारी होना चाहिए, जानकारी इतिहास के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, वो इतिहास का ही लिखता है. मतलब उसको जो बताना होता है वही लिखता है. Sorry. His perspective on those depends on conceptual framework he adopts. उसने कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है. Though historiography was not prevalent in ancient societies, the people living in those times too felt that they should pass on the stories about the life and valor of the ancestor to the next generation. So these ancient communities used various means like a cave painting, storytelling, songs, ballads for this purpose. In modern historiography, these means are looked upon as sources of a history. मतलब हिस्टोरियन राइटिंग जो है, उन्होंने जो लिखा है, जो इतिहासकार है, जो उपलब्ध जो सबूत होते हैं उसको चिकित्सा पूर्वक संशोधन करके जो गत काल में जो घटना घट चुकी है उसकी जो मांडनी, मतलब उसको हम एक सीक्वेंस से उसको लिखा रहता है और उसी को हम इतिहास लेखन, दैट इज हिस्टोग्राफी बोलते हैं. और जो इतिहास लिखता है उसको इतिहासकार बोलते हैं. मतलब जो इतिहास की जो सीक्वेंस से जो अरेंजमेंट करता है, जो पास्ट टेंस में हुआ है उसका जो घटना घट चुकी उसका रेफरेंस, उसका ज्ञान इतिहासकार को नहीं हो. इतिहास का जो अरेंजमेंट करता है वो कौन सी घटना घट चुकी है, कौन सी घटना बतानी है, लोगों तक क्या पहुंचाना है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है. उसने जो घटना चुनी है, उसका जो एनालाइज किया, उसका अरेंजमेंट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. पूरी दुनिया में जो प्राचीन संस्कृति है तो ऐसी ही इस तरह की इतिहास लेखन करने की परंपरा नहीं थी, परंतु लोगों को गत काल की जानकारी होनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा नहीं होती, ऐसे नहीं बोल सकते. मतलब जो बाप ज़्यादा थे, मतलब जो पुराने बूढ़े लोग थे घर के, उनके ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उनके जीवन की, उनके पराक्रम की. वो जो जानकारी बताते थे वो अगले जनरेशन को वो बताते थे. मतलब उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती थी. मतलब जो गुफा रहती थी, गुफा में जो चित्र निकालते थे उसमें से जतन करते थे.
जो कथन, गीत, पोवाड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, वो अति प्राचीन काल से अस्तित्व में था। आधुनिक काल में वो साधन के स्वरूप में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम आगे का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। The method of a modern historiography begins with the formation of a relevant questions which are asked in a logical order. Hence, it is asking a scientific method. These questions are anthropocentric, which means they center around the man and his activities in ancient societies. History does not advocate any interrelation between divine and human action. Answer to those questions have reliable evidence and are presented in a logical order. History presents the trajectory of a man's journey with the help of his past deeds and action. मतलब आधुनिक इतिहास के बारे में जब हम जान लेते हैं या जानकारी लेते हैं, तो आधुनिक इतिहास की, द मॉडर्न हिस्टोग्राफी की 4 बेसिक इम्पोर्टेंस, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। ये आधुनिक इतिहास जो है मॉडर्न हिस्टोग्राफी में जो पद्धत, जिस तरीका उन्होंने निकाल लिया है वो शास्त्र शुद्ध है क्या नहीं, उसकी शुरुआत एक अच्छी तरह से अरेंजमेंट करने से होती है। ये सवाल जो है इंसान से अगर पूछा जाता है, मतलब जो मानवीय समाज होता है, जो एक किसी विशिष्ट कालावधि में जो घटना घटी है उसकी संबंध में जो घटना मतलब भगवान देवी देवताओं की कहानी, उससे हम जोड़ने का प्रयास नहीं करते। जो इतिहास की जो विश्वासार्हता है वो उसको मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो इतिहास के सवाल हैं उनको जो सबूत का आधार होता है, तो इसकी वजह से इतिहास का जो अरेंजमेंट है वो तर्कसंगत रहता है। मानव जात ने गत काल में जो कृति की है उसके आधार पर इतिहास में ली जाती है, उसका जो एनालाइजिंग हो या समरी हो इस इतिहास में लिया जाता है। तो ये 4 प्रमुख वैशिष्ट है जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी में है। और इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो प्राचीन ग्रीक लोगों में लिखा, जो इतिहासकार है ग्रीक इतिहासकार, उनकी लेखन में मिलती है, ऐसा माना जाता है। हिस्ट्री ये जो शब्द है जो ग्रीक भाषा का है। ईस्वी सन पूर्व 5वें शतक हेरोडोटस, एक ग्रीक इतिहासकार, उसने हिस्ट्रीज जो वर्ड है, जो शब्द है, उसके शीर्षक के लिए यूज किया गया था। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। मतलब हमने अभी क्या देखा कि इंट्रोडक्शन के जरिए the objectives of writing history, need of an experts, historical research method and stages of historiography, then disciplines contributing, that is archaeology, actual science like this, then a tradition of historiography, historical writing and historian, then historical writing, then modern historiography। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में कुछ आया होगा। ओके, I think all of you understand well